Okay. So yeah, let's begin. Hi. Few people have joined. Okay. So yeah, today we are going to talk about weight loss plateau. So the thing is, hi Mustaqim, how are you? Yeah. Okay. So I'll just briefly explain before few more people join. We are going to talk about today weight loss plateau because I was getting lot of requests. Many people requested me. They all had same query कि मतलब हमारा वेट जो है पहले वेट लॉस किया था और उसके बाद स्टक हो गया वेट. अभी वेट जो है और नीचे नहीं गिर रहा है. किसी ने 5 kg लूज किया, किसी ने 10 kg, उसके बाद वेट उनका स्टक हो गया. तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको लगता है कि उनका वेट लॉस जो है वो प्लेटो में चला गया है. दे हैव हिट द वेट लॉस प्लेटो, कांट लूज वेट एनीमोर. So this topic is like we cannot cover it completely in a single post. So I thought better to make a video or do a live so that I can explain it better. So if you are someone who is having this problem that you lost weight but now your weight is stuck, how to lose belly fat. Okay, Mustaqim, I will make one video on this also. We will cover that how to lose belly fat. So today let's begin. I'll give you a brief summary. So today we are going to talk about how we have divided this is what is weight loss plateau. That is the first thing. Second thing is how do you know that you have hit a weight loss plateau. Third thing is what is the reason behind weight loss plateau. Fourth thing is how to overcome, what are the steps you can take to overcome this and you can get back to your weight loss journey. So after this I'll just summarize all the today's talk, then we'll take some questions. If you have any questions you can just message and I will answer it, or you can send a request to join the conversation. Okay, so let's begin with what is weight loss plateau. So weight loss plateau is actually when people who are on a weight loss journey and they are losing weight, but after certain point of time their weight loss gets stuck. So they are not moving despite increasing activities, exercising more and reducing calories. Despite this their weight is stuck. So they think that we have hit the weight loss plateau and they don't know what to do about it. अभी क्या करना है उनको नहीं पता है. तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपना कैलोरी काउंट और रिड्यूस करने लगते हैं ताकि उन्हें लगता है जब हम और कम कैलोरीज लेंगे तो वेट लॉस फिर से चालू हो जाएगा. तो पहली चीज़ तो ये है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, 90% लोग हैं वो वेट लॉस में और वेट लॉस प्लेटो में और स्लो प्रोग्रेस में कन्फ्यूजन हो जाता है. तो पहले तो हमें ये पता करना है कि आप एक्चुअल में वेट लॉस प्लेटो में हैं कि नहीं है. तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन चेक, लाइक अगर आपका वेइंग स्केल जो है वो स्लो मूव कर रहा है, मतलब आप जो पहले जिस स्पीड से आप वेट लॉस कर रहे थे वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट लॉस प्लेटो में चले गए. तो स्लो प्रोग्रेस, फर्स्ट थिंग इज स्लो प्रोग्रेस इज नॉट weight loss plateau. So slow progress is still a progress. Second thing is yo-yo dieting. When people are on and off on diet, they tend to see a slower progress because you are dieting 3 days, 4 days, then you get back to your normal daily your increased calorie count. So you are not actually creating calorie deficit. You are creating for 3-4 days, then you are binge eating, then you are creating again, and then you are taking more calories. So this is the consistency issue. This is not a weight loss plateau. So if you are on a yo-yo dieting, then that you should work to improve the consistency. So that is also not a weight loss plateau.
नेक्स्ट थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इनएक्यूरेट कैलोरी काउंटिंग. सो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो जो कैलोरीज इनटेक करते हैं वो कैलोरी इनटेक उनका कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है. अब इस प्रॉपर वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो कैलोरीज इन है उनमें उनका लिक्विड कैलोरीज कहीं मिस हो रहा है या कहीं फैट कंटेंट जो है किसी चीज में ज्यादा है या कुछ वो बिंज कर रहे हैं वो ऐड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो दे आर इन कैलोरी डेफिसिट बट एक्चुअली दे आर नॉट. सो इन एक्यूरेट कैलोरी काउंटिंग इज ऑल्सो नॉट वेट लॉस प्लेटो. योर वेट इज नॉट स्टक बिकॉज you have hit the plateau. Your weight is stuck because you are not counting calories properly. So this is another reason where people confuse between weight loss plateau and other things. After that there are something like okay, then there is progress check. So how to check your progress is also very important because people get confused between slow progress and weight loss plateau. So slow progress, if there is a slow progress and you are not seeing change in weighing scale but your strength is improving, your workout sessions are good and your clothes are fitting better or you are doing inch loss, if all of these things are happening, that means you have not hit a weight loss plateau. So that is also one confusion people have. So if you are improving in any area, that means you are improving and you will eventually see the change in your weighing scale also. So just keep going, don't change anything. The next thing is if there has some changes in your activity level, so calories in versus calories out, that means the calories you are burning, if there is a reduction in that also, you will see a slow progress. So suppose you were going for a walk and whole day you were active, you were hitting gym and workout session for 3-4 times a week, but suddenly for any reason if your activity level has dropped, that time also you will see a slow progress. That is also not weight loss plateau. That is because your activity levels have dropped, so you have to get back to your previous activity level or increased activity level so you can see the similar results. So then these are the confusions which people have in weight loss plateau. They confuse between weight loss plateau. So what is actually then weight loss plateau? So when you are actually in weight loss plateau, that means you have lost some weight and now your weight has stuck. Despite being fairly active, your activity levels haven't dropped, your workout sessions are proper, you are doing proper workout, and even after reducing further calories your weight is stuck. So that is when you can see that you are in weight loss plateau. So now once you have recognized that you are actually hit the weight loss plateau, not confused with slow progress. So if you have actually hit the weight loss plateau, so let's discuss what are the reasons why do we hit the why this weight loss plateau comes. And MS Sadil, I will answer your question at the end of it. Sir, weight loss जब करना हो तो कार्डियो एक्सरसाइज के साथ म्यूचुअल एक्सरसाइज कितने दिन स्टार्ट करनी चाहिए? I will answer it. Let's complete this, then I will answer it. Sayyid, my height is 6 feet 10 inches, weight is 86, I get 2 kg. How to maintain my weight to 74 kg? Okay, Mustaqim, I will answer it also. Let's complete this first. Okay, so now we have come to the point where we will discuss what are the reasons why do you hit weight loss plateau. So there are many reasons. The first thing is that you have to understand that calorie deficit diet is a stress for your body because you are not giving it enough energy, the required energy the body needs. You are not giving that much energy, so body senses it as a controlled starvation. That means कि आपको जितना एनर्जी बर्न करना है रोज उससे कम दे रहे हैं आप, तभी वेट लॉस होगा. बॉडी इसको एज अ स्ट्रेस लेती है और इसके लिए अडेप्ट करने की कोशिश करती है बिकॉज
अभी बॉडी को क्या कर रहा है, बॉडी को लगता है कि फूड नहीं मिल रहा है, तो उसको जो भी फूड मिलता है या जो भी एनर्जी मिल रही है वो इसको प्रिजर्व करने लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ योर वाटर इनटेक इज लो, अगर आपका वाटर इनटेक जो है वो कम है तो बॉडी क्या करती है, आपका यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपका स्वेटिंग कम हो जाएगा। तो बॉडी जो आपके अंदर जितना भी वाटर उसको मिलेगा उसको प्रिजर्व करने लगेगी। आप ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्वेटिंग ज्यादा होगा, आपका जो वाटर एक्सक्रीशन है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि अभी आप ज्यादा पानी ले रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कम कैलोरीज ले रहे हैं तो जो भी कैलोरीज आप ले रहे हैं बॉडी चाहेगी कि मैं एनर्जी को प्रिजर्व करूं, उसको प्रिजर्व करके और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करूं। तो कैलोरी डेफिसिट डाइट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस। तो बॉडी क्या करती है, हमको अडेप्ट करने की कोशिश करती है, डिफरेंट मैकेनिज्म से वो अडेप्ट करती है कि मैं एनर्जी कम बर्न करूं। सो इसीलिए पहले आपका वेट लॉस होता है, वेट लॉस हुआ 5 kg 6 kg 10 kg, उसके बाद धीरे धीरे वेट लॉस स्लो हो जाता है। तो ये जो वेट लॉस का स्लो है ये मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस होते हैं। मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस में आप देखिए, जब अगर आपका डेली कैलोरी जो बर्न कर रहे हैं आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें आपका आता है बीएमआर। बीएमआर मतलब आप रेस्टिंग स्टेज में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वाइल एट रेस्ट। देन नेक्स्ट थिंग इज आप फूड के डाइजेशन में कितना एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। एंड देन इज योर एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड आउटसाइड एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज एंड नीट, सो दीज थिंग्स आर योर टोटल बर्न कैलोरीज आर डिवाइडेड इनटू दीज 3-4 थिंग्स। सो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन में क्या होता है कि जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट एक लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो योर बॉडी बिकम्स मोर एडेप्टिव टूवर्ड्स इट। एंड फॉर द सेम एक्टिविटीज, आपका अगर वर्कआउट है वो बहुत एफिशिएंट होने लगता है। फॉर द सेम एक्टिविटीज इट स्टार्ट्स टू बर्न लेसर एंड लेसर कैलोरीज। सो सपोज आप 30 मिनट्स वर्कआउट करते थे तो 30 मिनट्स वर्कआउट में फॉर एग्जाम्पल आप 200 कैलोरीज बर्न करते थे, तो अब आगे जाके क्या होगा, ये एक एक्यूरेट नंबर नहीं है बट आई एम सेइंग फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आगे जाके क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज लेवल आपका कम एनर्जी में होने लगेगा बिकॉज बॉडी बिकम्स एफिशिएंट। इफ यू आर रनिंग ऑन ट्रेडमिल फॉर 30 minutes and your treadmill is showing that okay you have burned 1000 calories, so after some time you are going to do same exercise in 800 calories or 700 calories because your body is adapting towards it and you are becoming more efficient. So आप तो एक्टिविटी सेम लेवल की कर रहे हैं बट एनर्जी कैलोरीज उतनी नहीं बर्न हो रही है। दैट इज द वन रीजन फॉर मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। फिर धीरे धीरे आपके हार्मोन्स जो है, अगर आप लंबे क्रॉनिक जो है कैलोरी डेफिसिट डाइट में हैं तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन लेवल्स चेंज हो जाते हैं। तो लेप्टिन हार्मोन जो आपका हंगर हार्मोन है दैट गोज अप, यू फील मोर हंग्री, and your satiety hormones become blocked, their response is slower, so you don't feel satiated after food intake, so your hormones become more resilient, makes more, try to preserve more energy. Then your BMR drops, so long term chronic this diet makes your BMR drops. तो आप जो रेस्टिंग स्टेज में जो कैलोरीज बर्न कर रहे थे वो भी अब कम बर्न हो रही है। And so all these metabolic adaptations are there to preserve your energy. So उनको फिर बॉडी को क्या लगता है कि जो भी एनर्जी मिल रही है उसको प्रिजर्व कर लो। इसको प्रिजर्व करने से क्या होगा कि उसको लगता है कि हम ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज इवोल्यूशनरी ट्रेट इन आवर बॉडीज। So these are the reasons why weight loss plateau happens. And then there is another reason वाइल लूजिंग वेट। आपने अगर शुरुआत में 5 किलो 10 किलो लूज किया है तो उसको लूज करने में भी हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो ये मिस्टेक्स से क्या होता है, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन या वेट लॉस प्लेटो जल्दी आता है। मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स है जैसे कि हम जब वेट लॉस करते हैं तो हम मसल मास को प्रिजर्व नहीं करते, हम सिर्फ वेट लॉस पे ध्यान देते हैं, हम कैलोरीज रिड्यूस करते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है मसल मास जो है आपका वो प्रिजर्व नहीं होता। तो आपको वेट लॉस जब आप कर रहे हैं तो उसके साथ आपको मसल मास को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, प्रिजर्व करना, एंड यू कैन इंक्रीज ऑल्सो। सो उसके लिए इनफ प्रोटीन इंटेक एंड इनफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट। अगर आप उसके बिना आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप जल्दी हिट करेंगे वेट लॉस प्लेटो, आपका वेट लॉस जो है वो स्लो हो जाएगा बहुत जल्दी। तो हम पहली गलती ये करते हैं कि हम
जो है डाइटिंग करते वक्त अपना मसल मास को प्रिजर्व नहीं करते, मसल मास को इंक्रीज नहीं करते। मसल मास को इंक्रीज नहीं करते तो हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है डाइटिंग करते करते। तो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक वी डू वाइल लूजिंग वेट व्हेन वी स्टार्ट डाइटिंग। सेकेंड मिस्टेक इज हम कैलोरी डेफिसिट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं। अगर आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान हुआ है तो आप कभी ऑन एंड ऑफ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेट लॉस आप 3 महीने में कंप्लीट कर सकते थे वो आप फॉर ईयर्स इट इज गोइंग ऑन। आप 1 साल से 2 साल से, कई लोग 5-5 साल 6-6 साल से वेट लॉस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो कैलोरी डेफिसिट जो है वो एक स्ट्रेस है बॉडी के लिए, इसको लॉन्ग टर्म मत बनाइए। कैलोरी डेफिसिट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर होल लाइफ। कैलोरी डेफिसिट डाइट इज just lose the weight and get back to your normal previous maintenance calories or calorie surplus diet again. तो अगर आप chronic dieting कर रहे हैं, your diet history is that you are doing calorie deficit diet for a very long time, that means you are going to have some weight loss plateau very soon. तो आपको क्या करना है, आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट, अगर आप वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉपरली वर्कआउट और डाइट प्लान करके और वेट लॉस को ख़त्म करिए। डोंट स्ट्रेच इट। आप जितना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ डाइटिंग पे जाएंगे उतना लंबा आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट स्ट्रेच होगा, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा एडॉप्ट होगी इसके लिए और उतना ही आपको आगे वेट लॉस करने में मुश्किल आएगी। तो पहला वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं वो ईजियर होता है देन सेकेंड वेट लॉस। सपोज आपने वेट लॉस किया 5 kg, उसके बाद यू रीगेन 2 kg, तो इसके बाद अगेन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सेकेंड वेट लॉस इज मोर डिफिकल्ट दैट द फर्स्ट वन। सो बिकॉज योर बॉडी इज अडेप्टेड, इट हैज़ मेमोरी। वो आपकी बॉडी समझती है कि अभी आपको कैसे प्रिजर्व करना है एनर्जी को और कैसे अपना फैट स्टोरेज मेंटेन रखना है। तो सेकेंड थिंग इज, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो पहली चीज़ कि आप अपना मसल मास प्रिजर्व करिए। सेकेंड थिंग इज, इसको बहुत लंबा मत करिए, डोंट स्ट्रेच इट फॉर ईयर्स, जस्ट फिनिश योर वेट लॉस एंड गो बैक टू योर मेंटेनेंस कैलोरीज। एंड देन there are other mistakes we also do long term, and yeah, one more mistake we do when we do weight loss, we create a huge calorie deficit. So जब आप बहुत लंबा डिफरेंस पैदा करते हैं अपने मेंटेनेंस कैलोरीज और जो आप कैलोरीज ले रहे हैं, तो आपको क्या होता है उसमें भी फिर आपका मसल लॉस होता है। सो नेवर क्रिएट अ ह्यूज डेफिसिट, क्रिएट ऑलवेज अ स्मॉल डेफिसिट एंड make sure that your muscle mass is increasing and you are losing only fat mass. So that is another mistake people do while dieting. Then there are people who don't focus much on increasing their activity levels. They just rely on reducing the calorie intake. So आपको कैलोरी इंटेक सिर्फ 200 to 300 कैलोरीज रिड्यूस करना है, उसके बाद अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाना है। आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, तो एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाने के लिए आपको जस्ट मूव मोर, बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द वर्कआउट। आप अपना जो वर्कआउट कर रहे हैं वो करिए, लेकिन उसके अलावा जो दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं, try to be more active. So activity levels are very important. That is another mistake people do while dieting. So these are the main reasons that आपका metabolic adaptation, that is unavoidable, metabolic adaptation होगा ही होगा जब आप calorie deficit diet follow करते हैं। But we can reduce metabolic adaptation by doing certain things like preserving muscle mass, not stretching calorie deficit diet for too long, and being more active apart from workouts and be consistent with strength training. अगर ये चीज़ें करते हैं तो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन और वेट लॉस प्लेटो जो है वो जो आज आने वाला है काफ़ी लेट आएगा और आप तब तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड मोर ऑल दीज थिंग्स एंड नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ओवरकम दिस। इफ यू हैव हिट द वेट लॉस प्लेटो, यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डाइटिंग, तो अब क्या करना है, अब क्या करें कि हमारा जो है वेट लॉस वो फिर से शुरू हो जाए। तो पहले तो ये पता करिए कि आप एक्चुअली में वेट लॉस प्लेटो में हैं या कंफ्यूज्ड हैं बाकी अपने स्लो प्रोग्रेस से, और उसको आप वेट लॉस प्लेटो समझ रहे हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना है, आप अपना 200 से 300 कैलोरी रिड्यूस करिए
खाने में ज़्यादा मत रिड्यूस करिए, मैक्सिमम 200 कैलोरीज 300 कैलोरीज रिड्यूस करिए। थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए। अगर आप 3 दिन जिम जा रहे थे तो 4 दिन जाइए, 4 दिन जा रहे थे तो 5 दिन जाइए। थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए वर्कआउट सेशन में, 1-2 कार्डियो सेशंस एक्स्ट्रा ऐड करके। थोड़ा वॉक, अगर आप 6K स्टेप्स कर रहे थे तो 7K 8K करिए, थोड़ा सा उसको बढ़ाइए। इंक्रीज योर वॉक लिटिल बिट एंड ट्राई टू बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे। ये सब करने, ये 3-4 स्टेप्स करने के बाद भी अगर आपका वेट लॉस जो है वो फिर से रिज्यूम नहीं हो रहा है, देन वी कैन डू सर्टेन अदर थिंग्स। बट अगर ये सब करने के बाद आपका वेट लॉस रिज्यूम हो गया है तो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू इट। तो पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि आपका कैलोरी इंटेक थोड़ा सा रिड्यूस करिए, थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, वर्कआउट सेशंस पे ध्यान दीजिए, 1-2 कार्डियो सेशंस ऐड करिए। इसको करने के बाद अगर तब भी आपका वेट लॉस जो है वो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको रिवर्स डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो रिवर्स डाइटिंग में आपको क्या है कि आपको रिवर्स डाइटिंग इज इंक्रीजिंग योर कैलोरी इंटेक विदाउट गेनिंग फैट मास। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना कैलोरी इंटेक, इससे क्या होता है कि आपके जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस हुए हैं वो स्लो हो जाते हैं। जो आप धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो रहे थे वेट लॉस के लिए, दैट स्टार्ट्स गेटिंग बैक टू नॉर्मल एंड योर मेटाबॉलिज्म बिकम्स बेटर। तो अब आपको रिवर्स डाइटिंग करना पड़ेगा। रिवर्स डाइटिंग में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कैलोरी इंटेक एक कंट्रोल्ड मैनर में इंक्रीज करना है। तो आपको धीरे धीरे आप 100 कैलोरीज 150 कैलोरीज आपको अपने खाने में इंक्रीज करनी है। आपको एक्टिविटीज सेम रखनी है और वर्कआउट करना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर से मेंटेनेंस कैलोरीज पे आएगी या थोड़ा सा सरप्लस में भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बॉडी के जो एडेप्टेशंस हैं वो स्लो हो जाएंगे। तो अभी आप अगर 2000 कैलोरीज ले रहे थे और 1800 डेफिसिट था तो उसको फिर से मेंटेनेंस कैलोरीज अराउंड 2000 लेके आइए धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में। और ये आपको करना कितने देर है रिवर्स डाइटिंग? रिवर्स डाइटिंग आपको कितनी देर करनी है ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा कैलोरी डेफिसिट आपने किया है प्रीवियसली, आपकी डाइट हिस्ट्री में कितना क्रॉनिक है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप सालों से फ्रॉम ईयर्स यू आर डूइंग कैलोरी डेफिसिट डाइट, देन योर रिवर्स डाइट विल ऑल्सो बी लॉन्गर। अगर आपका जो रिवर्स डाइट है, आपका जो कैलोरी डेफिसिट डाइट है दैट इज आपने कुछ मंथ्स किया है और अब वेट लॉस स्टक हो रहा है, तो रिवर्स डाइट 1-2 वीक करके फिर से वापस कैलोरी डेफिसिट रिज्यूम कर सकते हैं। और जब आप रिवर्स डाइट करेंगे तो थोड़ा सा वेट गेन होगा, थोड़ा सा वेट आएगा। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है उल्टा। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट जो आएगा वो जब आप वापस रिज्यूम करेंगे कैलोरी डेफिसिट डाइट तो वो वेट अगेन यू विल लूज दैट वेट। तो आपको घबराना नहीं है कि आपका फिर से वो वेट गेन होने लगा है। थोड़ा सा आपको रिवर्स डाइटिंग पे ध्यान देना होगा। रिवर्स डाइटिंग करते करते आपका फिर से जो है मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो गया है दैट विल बिकम नॉर्मल अगेन एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। सो आपको ये करना है कि आपको अपना थोड़ा सा कैलोरी इंटेक कंट्रोल्ड मैनर में बढ़ाना है, और अगर थोड़ा वेट गेन भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या करना है आपको कि रिवर्स डाइट करने के बाद 1-2 हफ्ते करने के बाद उसको वापस अपने कैलोरी डेफिसिट डाइट पे आ जाना है। तो रिवर्स डाइट इज लाइक आपको एक जैसे बड़ी जंप लेने से पहले कुछ कदम पीछे जाना होता है, तो थिंक ऑफ इट एज दैट कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना है ताकि आप एक लंबी जंप ले पाए। सो रिवर्स डाइट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल, रिवर्स डाइटिंग इज आपका लॉन्ग टर्म गोल को देखना है कि आपको आगे चल के वेट लॉस करना है और वो वेट लॉस लगातार होता रहे, इसके लिए आपको रिवर्स डाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप वेट लॉस प्लेटो में अगर हैं भी तो आप बाहर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं समराइज करूं तो आपको पहली चीज़ है कि क्रॉनिक डाइटिंग नहीं करनी है। आपको अपना कैलोरी डेफिसिट डाइट बहुत लंबे टाइम के लिए स्ट्रेच नहीं करना है। आपको अगर आप डाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू फिनिश इट क्विकली एंड यू हैव टू गेट बैक टू योर मेंटेनेंस कैलोरीज। सेकेंड थिंग इज आपको पहले चेक करना है कि आप एक्चुअली में वेट लॉस प्लेटो में हैं या आप स्लो प्रोग्रेस से कंफ्यूज हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग 90% लोग जिनका प्रोग्रेस स्लो है इनकंसिस्टेंसी की वजह से, इनएक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ कैलोरीज की वजह से, या फिर उनका मेजरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो सही से अपने आप सिर्फ वेइंग स्केल से मेजर कर रहे हैं प्रोग्रेस को दूसरी तरह से मेजर नहीं कर रहे हैं।
इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो कंफ्यूज हैं कि दे हैव हिट द वेट लॉस प्लेटो बट दे आर नॉट इन एक्चुअल वेट लॉस प्लेटो एंड द 90% केसेस विच आई सी most these people are not in actual weight loss plateau, they are confused with the slow progress. So आपको ये करना है कि आपको वेट लॉस प्लेटो है कि नहीं ये पता लगाना है, दैट इज सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज अगर आप एक्चुअल में वेट लॉस प्लेटो में तो उसके लिए पहले आप थोड़ा सा अपने कैलोरीज को इनटेक को कम करिए, थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए. अगर ये करने के बाद भी आपका वेट लॉस रिज्यूम नहीं होता है तो आपको रिवर्स डाइटिंग करनी है. रिवर्स डाइटिंग में आपको अपना कैलोरी इनटेक इंक्रीज करना है कंट्रोल्ड मैनर में फॉर फ्यू वीक्स. उसको इंक्रीज करके 100 कैलोरीज 50 कैलोरीज एट अ टाइम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज तक लेके जाना है. अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को लेके जाना है उसको वहां तक. उसके बाद आपको फिर से अपना कैलोरी डेफिसिट डाइट रिज्यूम करना है. तो सो ट्राई दीज स्टेप्स एंड देन लेट मी नो हाउ इट गोज. I think I have covered most of the things. What is weight loss plateau, how to find if you have hit the weight loss plateau, and why weight loss plateau happens, metabolic adaptation and everything. What are the steps we can take it to resolve this? Yeah, so we have covered everything. And so reverse dieting is itself a very big topic. I will take more sessions on this and we'll talk more, we'll elaborate this reverse dieting step. बिकॉज अगर आपका वेट लॉस प्लेटो है तो आपको रिवर्स डाइटिंग करना पड़ेगा. तो इस पे हम और बात करेंगे. अभी आज का ये लाइव जो है वो समराइज करते हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन DM मी एनी टाइम और यू कैन पुट अ कमेंट ऑन माई पोस्ट एनीवेयर. सो आई विल गेट बैक टू यू. एंड इफ यू आर ट्राइंग दीज स्टेप्स डू लेट मी नो हाउ इट गोज. प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए. और इसके अलावा अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, हाँ, तो माई हाइट सैयद मुस्तकीम, माई हाइट इज 6 feet 10 inches, वेट इज 86, अगेन आई गेन 2 kg, हाउ टू मेंटेन माई वेट टू 74 kg. ओके, तो सैयद मुस्तकीम आप हाइट और वेट तो ठीक है लेकिन आपका डाइट मुझे बताना होगा. आपको मुझे बताना होगा कि आपका करंट डाइट क्या है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में है कि नहीं है. अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर इन, आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा. उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पता करना होगा. मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी सी कैलोरीज रिड्यूस करके थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ा के वर्कआउट करके आपका वेट जो है वापस 74 kg पे आ जाएगा. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप मेरे को कांटेक्ट करिए और मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्या करना है. इसके अलावा और किसने क्वेश्चन पूछा था? सर हाउ टू लूज बेली फैट, सेम. एंड देन सर वेट लॉस करने जाता हूँ तो कार्डियो एक्सरसाइज के साथ मैनुअल एक्सरसाइज कितने दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं? तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या है मैनुअल एक्सरसाइज. मतलब वेट ट्रेनिंग को आप मैनुअल एक्सरसाइज बोल रहे हैं, ऐसा कुछ? मिस्टर सदील 38, आपका जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को DM करिए, विल टॉक अबाउट इट. हेलो, हाय अंकित हैज़ ज्वाइन. हेलो सर, हाउ आर यू? तो अभी आज का ये टॉपिक जो है वो समराइज करते हैं. और इसके अलावा आई हैव वन अनाउंसमेंट टू मेक. आई एम क्रिएटिंग वन फिटनेस कम्युनिटी, सो दैट इज एक्चुअली ऑन टेलीग्राम ऐप. सो if you want to join, just DM me your number or I'll send you a Telegram invite. And this will be mainly because we can create a community where we will discuss more about it and discuss about more about fitness and weight loss journey and problems we face. If you have any doubt you can ask me directly there, and we can discuss about healthy recipes, protein content, all these things we can discuss on this fitness community. So if you want to join it, just message me and I will add your number into the Telegram community. And someone has sent a request. Okay, let's see. Prerna is joined. Hi Prerna, hello. Yes. Okay, so that is it for today. And Hi, good morning. Hi, good morning. Hi, good morning. How are you? I am good. Yeah, so how's your weight? My weight loss journey is going good, but
some problems are happening. I mean, I think my weight is stuck. That's why Okay. I keep messaging on you. Yeah. Yeah. So, You are helping you me. have, You are helping you have, me. yeah, That's why. yeah. Okay, so, Am I audible, yeah, Rakesh? yeah, yeah. Okay. So, So, as we have discussed, actually, Your voice is not proper. We hear, Rakesh. yeah. You're not audible properly. Hello. Can you hear me now? Yeah, hi. Am I audible now? Yeah. You are audible. Yeah. So, as we have discussed earlier, all this proper, and Yes. your typing is also we have increased. The main thing is, I guess the main thing is diet. Diet should be, if we should maintain our diet, so it could maintain our weight proper or helps Yes. to make healthy and Yes, you are doing strength you are doing strength training. The only thing is we have not created calorie deficit. yes, right. So yeah, you have to make a chart. And I must say, I am very thankful to you. You help me a lot in my queries and all. Every time when I ping you, you always Yeah. reply me on the time. That is very helpful for me. Thank you. I'm there. I'm there anytime, and I will try to help. You can message me anytime. Yes. I am very thankful. You are very helpful for me, and you give me lots of information. And yes, I'm just thankful to you. Thank you, and we will make sure that you do it. My friends is also joining you. That is good. I must say, please message Rakesh and please Rakesh enroll. Please enroll yourself to Rakesh Fitness. Okay, yeah. So if you want time, I am a student and a fitness coach, nutrition expert. So you can have any query regarding this topic, you can just message me anytime. Yes. And yeah, so I think I should leave now. Yeah, we will talk. Yes. Okay. Thank you. Okay, Bye. thanks for joining. Okay. Thanks for joining. Keep support me and help me. Yeah, sure. Bye. Okay. Bye-bye. Okay, so we will wrap this up. And if you have any doubt regarding this topic, weight loss plateau, you can just DM me, or you can comment below my post, and we will make sure that this issue is resolved. And if you want to join my Telegram community, just message me and I will send you an invite. And we will have more sessions on this. So if you have any doubt, we will include it in the next session. Right now, if you have any query, any question, you can post it here. Otherwise, then we will wrap this up. Okay. So yeah, it was good having a discussion, and let's see you next weekend. And we will meet next weekend, and we'll talk more about it and other topics also. Okay. Chalo. Bye.